بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا واقعہ سناؤں گی۔ میری آپ سے گزارش ہے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور سنیں۔ اس زمانے کے بادشاہ کا نام نمرود تھا جو خدا کا انکاری تھا۔ گدی پر بیٹھا اور اس کی راہوں کے تمام کانٹے دور ہو گئے تو اس نے ملک میں انصاف کو بڑھاوا دیا، رات دن سیوا میں لگا رہتا، یہاں تک کہ پورے ملک میں سکھ شانتی کا بول بالا ہو گیا۔ جب اس طرح حکومت کرتے کرتے ایک مدت گزر گئی تو شیطان نے اس کو بھی گمراہ کرنا شروع کر دیا، اس کے دماغ میں بھی گندے خیالات بھرنے شروع کر دیے، یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آیا کہ اس نے خدائی کا دعویٰ شروع کر دیا، اپنی مورتیاں ہر عبادت خانے میں بھجوا دی تاکہ لوگ اس کو سجدہ کریں اور اس کی پوجا کریں۔ ایک دن نجومیوں نے ستاروں پر نظر کر کے نمرود سے یہ عرض کیا کہ اس سال اس شہر میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تیرا ملک اور تیرا دین تباہ کر دے گا۔ نمرود گھبرا گیا اور اس نے بے قرار ہو کر حکم دے دیا کہ اس سال جتنے لڑکے پیدا ہوں سب کو قتل کر دیا جائے۔ ابراہیم علیہ السلام کی امی بھی حمل سے تھیں، سب کو معلوم ہو جانے کے ڈر سے باہر چلی گئیں۔ جب جنگلے میں ایک سوکھی نہر میں پہنچی تو آنکھوں کا یہ نور پیدا ہوا، ماں کا دل چہرہ مبارک دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ وہاں نہر کے پاس ایک غار تھا، وہاں لوگوں کا آنا جانا بالکل نہ ہوتا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کی ماں اس خوبصورت بچے حضرت ابراہیم کو ایک کپڑے میں لپیٹ کر رکھ دی اور وہاں سے آنسو بھرے دل کو پریشان کیے واپس گھر لوٹ آئیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ماں انہیں دیکھنے کے لیے دوبارہ اس غار میں آئیں تو انہیں زندہ اور خوش دیکھ کر ان کی آنکھوں سے محبت کے آنسو نکل آئے۔ انہوں نے دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک انگوٹھے سے دودھ اور ایک سے شہد پی رہے ہیں۔ ایسی حالت دیکھ کر ماں بے حد تعجب میں پڑ گئی، خوشی بھی ہوئی، انہیں دودھ پلا کر وہ روتی ہوئی گھر واپس آ گئیں۔ اسی طرح جب جب انہیں موقع ملتا وہاں جاتی، دودھ پلا کر چلی آتی۔ جب کبھی ماں کو پہنچنے میں دیر ہو جاتی تو وہ اپنے انگوٹھے منہ میں ڈال لیتے اور انہیں چوس چوس کر اپنا پیٹ بھر لیتے۔ ماں کا دودھ پلانا تو ایک بہانہ تھا، ورنہ اصل کھلانے پلانے والا تو اللہ ہے اور وہی انہیں کھلا پلا رہا تھا۔ حضرت ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک دن میں اتنا بڑھتے تھے جیسے اور لڑکے ایک ہفتے میں بڑھتے تھے۔ وہ ایک ہفتے میں اتنا بڑھ جاتے تھے کہ اور لڑکے ایک مہینے میں بھی مشکل سے بڑھ پاتے، اور وہ ایک مہینے میں اتنا بڑھ جاتے تھے کہ دوسرے بچے سال میں اتنا بڑھ پاتے تھے۔ اس طرح جب دودھ پینے کی مدت ختم ہوئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام میں کچھ سمجھ پیدا ہوئی تو ایک دن ان کی ماں نے رات کو آ کر ملاقات کی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ماں سے پوچھا، کیا اس اندھیرے کے علاوہ اور کوئی دوسری جگہ نہیں ہے؟ اس جنگلی علاقے کے علاوہ کوئی دوسرا مکان نہیں ہے؟ ماں نے کہا کہ دشمنوں کا ڈر سے تم کو یہاں چھپایا ہے اور تیری حفاظت کے لیے اس گھر کو چنا ہے۔ ویسے تو دنیا بہت لمبی چوڑی ہے اور آسمان بہت اونچا اور بہت بلند ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اب تو مجھ کو غار میں آرام نہیں ملتا اور نہ مجھے یہ جگہ ہی اچھی لگتی ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام غار سے نکل آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب غار سے باہر نکلے اور آسمان پر ستارے کو دیکھا تو فرمایا، یہ میرا پالن ہار ہے۔ ڈوب گیا تو فرمایا، مجھے ڈوبنے والا پسند نہیں، یعنی ڈوبنے والے پالن ہار سے میں محبت نہیں کرتا۔ یقین کی اسی نظر سے پھر چاند اور سورج کو دیکھا جو چمک رہا تھا تو فرمایا کہ یہی میرا رب ہے، اب میں اسی سے واسطہ رکھوں گا۔ لیکن جب چاند اور سورج بھی ڈوب گیا تو اس کو بھی خدا ماننے سے انکار کر دیا اور بولے، سوائے اس خدا کے جو بے مثال اور بے زوال ہے، میں اب کسی پر یقین نہیں کر سکتا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کی ماں گھر لے آئیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کی برائی بتانا شروع کر دی اور ان کے پوجنے والوں پر لعنت بھیجنی شروع کر دی اور نمرود کو یہ بات معلوم
हुई तो उसने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बुलाया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम निडर थे, उन्हें तो बस अल्लाह का डर था, वह नमरूद से क्या डरते। वह वहाँ पहुँचे, पहुँचने पर उन्होंने नमरूद को न सजदा किया न सर झुकाया। नमरूद को झुंझलाहट हुई, वह गुस्से से बोला, तू मुझको सजदा क्यों नहीं करता? बोले, सिवाय हकीकी खुदा के मैं किसी को सजदा नहीं करता। नमरूद ने पूछा, तेरा परवरदिगार कौन है? वह क्या कहता है? बोले, वह सबको पैदा करने वाला है, सबको मारता है, जिलाता है। नमरूद बोला, मैं भी जिसे चाहता हूँ मार देता हूँ और जिसे चाहता हूँ ज़िंदा रखता हूँ, इसलिए तो मैं भी पालनहार हूँ। फिर 2 कैदियों को कैद खाने से बुलाया। इन दोनों को फांसी होने वाली थी, एक को तो फ़ौरन फांसी दे दी और दूसरे को छोड़ दिया और बोला, देखो हमने भी तो एक को जिलाया और एक को मारा, हम हैं परवरदिगार और हमारा काम भी यही है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरा परवरदिगार सूरज को पूरब से निकालता है और अगर तू सच्चा है तो इसे पश्चिम से निकाल दे, तब मैं जानूं कि तू वाकई खुदा है। इस बात से नमरूद और उसे खुदा जानने वाले सब खामोश हो गए। इसका कोई जवाब न बन पड़ा। हाँ, जिन्होंने ये मंजर देखा और इन बातों को सुना, उनमें से अक्सर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बातों पर ईमान लाए और मुसलमान हो गए। एक दिन हज़रत इब्राहीम ने आज़र से पूछा कि ए अब्बा, ये क्या चीज़ें हैं जिनकी तुम बंदगी करते हो कि इनके ना कान हैं ना आँखें हैं, ना तुमको नफ़ा पहुँचा सके ना नुकसान दे सके। आज़र ने इसका कोई जवाब न दिया। हाँ, बोले इब्राहीम, अगर तू हमारे खुदाओं से बेजार होगा तो तू सज़ा पाएगा, तुझे पत्थर से मार मार के हलाक कर दिया जाएगा। इसके बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने दिल में इरादा कर लिया कि बुतों का सिर्फ बुत होना हम लोगों को बता कर रहेंगे, ताकि लोगों को मालूम हो कि ये सिर्फ पत्थर हैं और इनके पूजने में ना कोई फ़ायदा है ना कोई नुकसान। इस वक्त पूरी कौम में ये रस्म थी कि जब ईद का दिन आता था तो हर एक अच्छे कपड़े पहनकर अपने को सजता धजता था और अच्छे से अच्छा खाना पकाकर बुतों के सामने रखकर फिर ईदगाह को जाता था। जब वापस होते तो इस्तेमाल करते और ये समझते कि इस तरह पूरे साल रोज़ी में कोई कमी ना होगी। जब ईद का दिन आया तब सब ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपने साथ चलने को कहा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सितारों की तरफ देखा, कहा कि मैं बीमार हूँ, इसलिए तुम्हारे साथ चलने में मजबूरी है, और दिल में सोचा कि मैं इनके बुतों के साथ एक खेल करूँगा और इन्हें सबक सिखाऊँगा कि किसी काम के नहीं हैं। जब सब लोग तय खाना खाली करके ईदगाह को पहुँचे तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बुत खाने में पहुँचे और पूछने लगे कि ऐसे अच्छे खाने तुमने खाए क्यों नहीं? बुत आखिर बोलते कैसे? उन्होंने बोलने की ताकत नहीं थी। फिर तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कुल्हाड़ी लेकर सबके सर तोड़ दिए, किसी के हाथ कटे और किसी का कान, मगर बड़े बुत को बचाए रखा और उसके गाल में कुल्हाड़ी लटका दी और बुत खाने बंद करके यहाँ से वापस आ गए। लोग जब ईदगाह से लौटकर तय खाने में दाखिल हुए तो ये देखकर हैरान रह गए कि किसी का हाथ है न किसी का कान, सब बड़ी जिल्लत से ज़मीन पर पड़े हैं। बोले, किस जाहिल ने ये तमाशा हमको दिखाया है और हमारे खुदाओं को तोड़कर हमारे दिलों को जलाया है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तो हमेशा बुतों पर और बुत पूजने वालों पर तंज किया करते थे और उनके शिर्क व बेईमानी का लानत भेजा करते थे। इसके दिल में यही ख्याल हुआ कि हो ना हो ये काम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ही है। ये सब ने यही सोचा, काश इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कोई मार डालता। फिर क्या था, सब ने मिलकर नमरूद से फरियाद की, इब्राहीम ने तय खाने का अदब व एहतराम धूल में मिला दिया है। नमरूद को भी बड़ा ताव आया। उसने फ़ौरन इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बुलाने के लिए आदमी भेज दिया। नमरूद भी और कौम के लोग सभी गुस्से में भरे बैठे थे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आते ही सब एक साथ बोल पड़े, इब्राहीम बता ये हरकत किसने की? फरमाया कि तुम इस बात को बड़े बुतों से पूछो, तुम उसकी सबसे ज़्यादा इज्जत करते हो, वह तुमसे कुछ नहीं छुपाएगा। ये तुम्हारा बड़ा बुत जो है इसका क्या इतना भी नहीं कि ये बताए?
इन लोगों के पास इसका जवाब ही क्या था। बड़ी परेशानी में पड़ गए, फिर भी कुछ कहना ही था। बोले, तुम तो जानते हो कि तुम बुत नहीं बोला करते, उनमें बोलने की ताकत ही नहीं है। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि फिर ऐसे खुदाओं की पूजा का फ़ायदा, जब ये ना बोल सके, ना नफ़ा पहुंचा सके, ना फ़ायदा, जब ये बोल सके ना नुकसान, ऐसे खुदाओं को पूजें, उससे बड़ा जाहिल कौन होगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस बात का कुछ लोगों पर इतना असर हुआ कि वे फ़ौरन ईमान ले आए, और जिनका पहले से ईमान था उनका ईमान और पक्का हो गया। नमरूद ने इस मामले में पड़ा देखकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कैद का हुक्म दे दिया और सज़ा सुनाई कि इसे आग में फेंक दो ताकि ये जले और हमारे दिल में जो गुस्से की आग लगी हुई है वह बुझे। जालिम कौम इस फैसले से खुश हो गई। फिर क्या था, पहाड़ की तलेटी में 160 गज का मकान बनाया गया। वह देश देश की लकड़ियाँ जमा करके लाई गई। उन लकड़ियों में आग लगा दी गई। उनमें आग इस तरह धधक धधक कर जलने लगी कि चिड़ियों के उड़ने तक का रास्ता बंद हो गया। कोई जानवर उस तक पहुँचने की हिम्मत न कर पाता था। सवाल पैदा हुआ, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इसमें डाला कैसे जाए। किसी की समझ में नहीं आ रहा था, सब परेशान थे। रहनुमाई शैतान ने की और सिखाया, मंजनिक बनाओ, जैसे दो किनारों पर बांस लगाकर झूला बांध जाता है। मंजलिक के ज़रिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया तो आसमान व ज़मीन के फरिश्तों ने रो रो कर शोर मचाया कि खुदाया, तेरे खलील दोस्त से उसके ये दुश्मन मामला करते हैं। हमसे तो ये जुल्म देखा नहीं जा रहा है। हमको जुल्म हुक्म हो तो इसके अभी छोड़ दे और तेरे दोस्त को इन दुश्मनों से बचा लें। अल्लाह ताला का हुक्म हुआ कि अगर तुमसे इब्राहीम अलैहिस्सलाम मदद मांगे तो बेहतर है, उनकी मदद कर सकते हो। फिर क्या था, दो फरिश्ते जो हवा पानी पर मुकर्रर थे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आए और बोले, अगर हुक्म करें तो हवा और बारिश से इस आग को बुझा दें। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनसे मदद को लेने से इनकार कर दिया। फरिश्ते बहुत गमगीन हुए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ मांगी, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, तर्जुमा, मेरे लिए अल्लाह काफ़ी है और वही बेहतरीन कारसाज है। ये दुआ मांगते ही नमरूद की आग ठंडी होकर फूलों का गुलजार बन गई। नाजरीन, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अपनी राय अपने कमेंट के ज़रिए ज़रूर दें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें। आगे इस तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।